Good afternoon. Good afternoon, everyone. Hello. Good morning. Can you all hear me or? Yes. Yes, okay. I kept changing the speaker, so I thought you guys can't hear me. So, do you all think we should read in English this time? Mirror workbook. Yes. it We चेंज भी all read होगा in और Hindi, so. दोनों लैंग्वेज में समझ में आएगा. Yeah. Or maybe we can see if it's too much English, then we can also read in Hindi a little, some paragraphs, right? Everyone, please say. Okay. So let's start our peak state programming. Good afternoon, Sangeeta ji. Okay, let's start. First, yes, mental state instantly. Okay. Stand in a running position. Everybody, The right leg in the front and left ankle raised in turn a on your running videos position. and let's do our Think peak and state feel that programming. you are running an Olympic race and you are winning. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Run faster, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, fast, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on. Go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Yes, Very I'm nice. the winner. And you We say to all are yourself, the winners. I am the winner. I'm the winner. I'm Yes, the winner. thank you. So now, repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just Yes, stop. I'm the Thank winner. you. We all are the And winners. now you say to yourself, yes, I am the winner. Yes, I am the winner. I am the winner. And now we say to ourselves, I can. Okay, I repeat. can. I can. I will. I I must. will. I must. I can. I will. I must. Thank you so much. Okay, who would like to read today?
We Can are I? talking in English today. I mean, we will take both the languages. Okay, who said hello? Is it Arwa? Yes, okay. Thank you, Anushka. Thank you so much. Okay, so let's start. To all those who are ready to experience the joy of mirror magic. So this is the kind of intention that Luis has for us. So now, right now only, you all also prepare one intention for your mirror work. What do you want to achieve from your mirror work? You all make an intention, because intentions are very powerful. When you make an intention, you are setting in motion something that you want to achieve. तो इंटेंशन बनाना हमेशा बहुत ही जरूरी होता है. सो यू ऑल्सो मेक इंटेंशन. कभी भी कुछ भी करते हो, पहले हमेशा इंटेंशन बना लिया करो. जिससे क्या होता है कि ब्रह्मांड को पता है कि व्हाट यू वांट टू अचीव. ओके, वेलकम. सो अरवा, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. Welcome. Welcome, dear ones, to my 21-day course on mirror work. It is based on my popular video course, Loving Yourself. Over the next 3 weeks, you will learn how to transform your life simply by looking into a mirror. Mirror work, looking deeply into your eyes and repeating affirmations, is the most effective method I have found for learning to love yourself and see the world as a safe and loving place. I have been teaching people how to do mirror work for as long as I have been teaching affirmations. Put simply, whatever we say or think is an affirmation. All of your self talk, the dialogue in your head, is a stream of affirmations. These affirmations are messages to your subconscious that establish habitual ways of thinking and behaving. Positive affirmations plant healing thoughts and ideas that support you in developing self-confidence and self-esteem and creating peace of mind and inner joy. Yes, तो हम अभी जो ये 21 डे का कोर्स वापस कर रहे हैं, तो ये कोर्स हमें क्या दिलाएगा, क्या देगा? वो हमें सेल्फ लव करना सिखाएगा. और सेल्फ लव कैसे करेंगे? हम मिरर के सामने एफर्मेशंस बोल के. वैसे हम अभी जो भी डायलॉग्स पूरे दिन जो हमारे चलते हैं माइंड के अंदर, वो क्या है? एफर्मेशंस है. भले वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर आप सब ने अभी इतना मिरर वर्क और ये थोड़ा मैजिक बुक करने के बाद इतना जरूर नोट किया होगा कि 99% ऑफ द टाइम हमारे माइंड के अंदर जो टॉक चलता है, कुछ न कुछ नेगेटिव होता है. या तो हम किसी को ब्लेम करते होते, या किसी हमारे सर्कमस्टेंसेस पे ब्लेम करते, या हम अपने ऊपर पूरा टाइम ब्लेम करते रहते हैं. सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी आलोचना, वो हमारा बिल्कुल, मतलब यू कैन नॉट बिलीव हाउ मच आई डिस्कवर्ड फॉर माई सेल्फ कि मैं कितना ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म और जो बोलते हैं ना सेल्फ लोदिंग, वो मैं इतना करती थी. मुझे अभी पता चला, यानी मैं बचपन से करती आई हूँ, अभी मुझे पता चला कि इतना ज्यादा मैं अपने आप को हमेशा बोलती रहती थी, ये मत करो, ये करो, यू ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों करती हो, यू नो यू शुड हैव डन दिस, यू शुड हैव डन दैट. हमेशा यही चलता है पूरा टाइम. तो ये जितना हम ये डीपर जाते हैं, तो हमें अपने खुद के बारे में इस नेगेटिव सेल्फ टॉक पता चलती है. अदरवाइज तो ऑटो पायलट पे अंदर डीपर में चलता ही रहता है, पता भी नहीं होता. अभी आप सबने देखा होगा, जिन्होंने भी बराबर 21 डेज का मिरर वर्क किया है, आपको इतना तो पता चला होगा कि आपकी जो माइंड में जो थॉट्स कंटिन्यूअस चलते थे, वो काफी हद तक कम हो गए. किसी को ये लगा कि काफी हद तक कम हो गए अभी? तो या लेट्स रीड फर्दर. यस,
Arwa and Nukshan. The most powerful affirmations are those you say out loud when you are in front of your mirror. The mirror reflects back to you the feelings you have about yourself. It makes you immediately aware of where you are resisting and where you are open and flowing. It clearly you shows you what thoughts you will need to change if you want to have a joyous, fulfilling life. As you learn to do mirror work, मिरर आपको सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है. जो भी आप बोलते हो वो सामने से उसको क्या अंदर फीलिंग्स क्या है वो आपको तुरंत ही रिफ्लेक्ट बैक करता है. तो इसी से आपको पता चलेगा कि हाँ कौन से ऐसे थॉट है जिसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, कौन से ऐसे थॉट्स है जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है. तो ये सब आपको मिरर के सामने पता चलता है. कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने इनिशियली जब मिरर वर्क स्टार्ट किया तो मिरर के सामने जाते ही रोना ही आता था, क्योंकि कभी प्यार किया ही नहीं अपने आप से. तो मिरर सामने वाला जो मिरर वाला जो बंदा है उसको बहुत ही मतलब फीलिंग्स ही बाहर आ रही है कि तू अभी मुझसे प्यार करने आई है इतने सालों के बाद. तो मिरर के सामने जो बंदा है वो बोलना तक नहीं चाहता था आपसे. आपको पता चला होगा इनिशियली. तो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी, बहुत रोना आ रहा होगा, मिरर वर्क करने का मन भी नहीं करता होगा. ये सब हुआ होगा इनिशियली. लेट्स सी. Arva, you can start reading. as you learn to do mirror work, you will become much more aware of the words you say and the things you do. You will learn to take care of yourself on a deeper level than you have done before. When something good happens in your life, you can go to the mirror and say, thank you. That's terrific. Thank you for doing this. If something bad happens to you, you can go to the mirror and say, okay, I love you. This thing that just happened will pass, but I love you and that's forever. For most, हम कुछ पता नहीं किसी का अनुष्का यू वेर ऑन अनम्यूट, कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है. यस नाउ इट्स. हाँ वो मेरा ही वॉइस हो. नहीं एक्चुअली चलो अभी बंद हो गया. ओके let's read. For most of us, sitting in front of a mirror and facing ourselves is difficult at first. So we call this process mirror work. But as you continue, you become less self-critical and the work turns into mirror play. Very soon, your mirror becomes your companion, a dear friend instead of an enemy. Yes. Doing mirror work. जितना आप मिरर वर्क करते जाएंगे इतना ही मिरर आपका कंपेनियन होता जाएगा. फिर मैं आपको बताती हूँ, पक्का बताती हूँ कि आपको किसी की जरूरत नहीं. अभी आपको लगता है ना कि नहीं मुझे किसी न किसी के साथ आपका जो अटैचमेंट होता है ना उसको भी कहीं ना कहीं पे हम नेगेटिव ही बोलेंगे. अटैचमेंट्स जो भी होते हैं ना वो नेगेटिव अटैचमेंट्स होते हैं. जहाँ पे प्यार होता है ना वहां पे अटैचमेंट नहीं होता. तो अभी क्या होता होगा कि कहीं ना कहीं किसी से आप अटैच हो जाते हो तो आपको लगता है कि मेरा तो सब कुछ यही है, इसके बिना तो मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं. अगर ऐसा लगता है आपको तो अब से अगर मिरर वर्क करने के बाद आप खुद से ही इतने फेमिलियर हो जाओगे अपने आप से कि फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अपने आप से ही एक इतनी अच्छी आपको कंपनी मिलेगी जो हमेशा आपके साथ रहेगी. इट विल बी फॉर यू फॉर एवर. यानी फिर आपको कोई भी अगर शेयरिंग भी करनी है तो मिरर के सामने जाके करो. किसी और से शेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द पर्सन इन द मिरर विल मेक यू फील सो मच बेटर देन अदर पर्सन. क्योंकि अगले बंदे को तो पता भी नहीं ना अंदर क्या चल रहा है. आप उसको कुछ बोलते हैं, जाके शेयरिंग करते हो, वो अपना ओपिनियन अपने परसेप्शन से देता है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कभी कभी. हाँ कभी कभी हो सकता है कि आपको कोई सॉल्यूशन मिल सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो पर्सन इन द मिरर है वही आपको सॉल्यूशन देगा. फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है.
तो लेट्स रीड फर्दर. Doing mirror work is one of the most loving gifts you can give yourself. It takes only a second to say, "Hi kid," or "looking good," or "Isn't this fun?" It's so important to give yourself little positive messages throughout the day. The more you use mirrors for complimenting yourself, approving of yourself, and supporting yourself during difficult times, the deeper and more enjoyable your relationship with yourself will become. You may be wondering why 21 days for the program. Can you totally transform your life in just 3 weeks? Maybe not totally, but you can plant the seeds. As you continue to do mirror work, these seeds develop into new healthy habits of mind that opens the door to a joyous and fulfilling life. So let's begin. यहाँ पे देखा आपने, हेल्दी हैबिट्स ऑफ द माइंड. अभी हमारे माइंड क्या है, वाइल्ड, अपने आप चलता रहता है. हमने उसको कभी कंट्रोल नहीं किया. वो अपने आप ऑटो पायलट पे चलता रहता है. हमें ऐसे ही थॉट्स लाके देता है. या तो डर के थॉट्स होंगे, चिंता होगा, या फिर कुछ ना कुछ इस टाइप के ही थॉट्स होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम. पर अब हम क्या करेंगे, हम उसको प्लांट, हमने सीड्स तो कर लिए ऑलरेडी. अभी 1 महीना 21 डे हमने ऑलरेडी प्रोग्राम किया, तो थोड़े थोड़े से प्लांट कर दिए हमने सीड. अभी हम कंटिन्यू करेंगे मेरा वर्क. तो दीज सीड्स विल डेवलप इनटू न्यू हेल्दी हैबिट्स ऑफ माइंड. तो अपने माइंड की हम हेल्दी हैबिट्स को डेवलप कर रहे हैं, ये पूरा जो भी करते हैं हम. और हम कितने लकी, मुझे बहुत लगता है कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हम ये सब प्रैक्टिस करके इतना कुछ बदल रहे हैं, जिसके लिए पता नहीं है हमें कितने पैसे खर्चने पड़ते, पता नहीं कितने ऐसे कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता. और उसके सामने हम बस खाली मिरर के सामने ये सब चीजें करके इतनी सारी चीज हमारे आउटर वर्ल्ड में हम बदल रहे हैं. सो या दैट्स इट. यहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन दिया हुआ है जो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं. दैट्स इन इंग्लिश, लुइस हे की आवाज में है, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो. hayhouse.com ये उनकी पब्लिकेशन कंपनी है, तो उसके ऊपर आप कर सकते हो. तो जैसे डे 1, अभी डे 1 से आज से स्टार्ट करना है या कल से? यू ऑल टेल मी. कल से. ओके ओके. Today. Okay. Somebody said today, somebody said yeah, tomorrow. Today. Today, okay. Because फिर बाद में अगर वेट करते रहते हैं ना, so you know if it is 1 day back, so you know we are just lagging back. I feel if you do the same day, it has more effect. अच्छा, यानी आप नहीं, मेरा पूछने का मतलब है कि ये डे 1 हम कल से अभी रीड करें या आज रीड करें. और हाँ, आप लोगों का, आपका जैसे 2:30 बजता है वहां पे, इट्स अप टू यू कि लाइक आपको प्रैक्टिस भी सेम डे करनी है तो आप कर सकते हो. पर मोस्टली क्या होता है कि कितनी सारी प्रैक्टिस ऐसी है जो सुबह स्टार्ट होती है. इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप लोग अपने हिसाब से उस टाइम पे करो. पर इट्स अप टू यू, आप लोग बोलो आपको क्या करना है. So better start with today, no? So we can do from 1st October. Last day on 1st October. Okay, let's. So today only we can start day 1. Okay. So yeah, Arwa, read loving yourself. Day 1. Yeah, but I cannot see the screen. Everybody. Alifia, I can read in English, and Magic Book Arwa can read. Actually, Anushka, Babita, I have to leave, so अभी मैं रीड कर लेती हूँ, फिर बाद में आप रीड कर लेना, है ना? मुझे हाँ हिंदी में कम जमता है. It's okay, you carry on. She is leaving to you. अगर आपको पूरा रीड करना है तो you can करते हो हिंदी में, तो रीड करना आप. चलो, मुझे पता है. Okay, loving yourself, day 1, start.
It is so important to love yourself. Mirror work can help you build the most important relationship of your life, your relationship with yourself. When you begin your mirror work, you may think it's too easy or even silly. A lot of things I suggest that you do over the next 21 days may it first appear too simple to make a difference. But I have learned that the simplest actions are often the most important. One small change in your thinking can lead to huge changes in your life. Each day we will address a different theme. I will begin with some thoughts on the theme and then give you a mirror work exercise. I would like you to practice throughout the day. You can begin with in the morning by doing this exercise in front of your bathroom mirror, and then during the day you can repeat it whenever you pass a mirror or see your reflection in a window. You can also carry a pocket mirror with you and use it to do mirror work whenever you have few minutes to spare. यस, सो आज हम ये आप लोग कल से स्टार्ट करेंगे। जितना हो सके इतना मॉर्निंग में करना, ठीक है? मॉर्निंग से स्टार्ट करना और फिर पूरा दिन जहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्शन दिखता है वहां पे आपको ये जो भी लुइस ने हमें मिरर वर्क बताया वो करना है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वो कुछ ना कुछ थीम लेके वो स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ कुछ थॉट्स देते हैं उनके उसके वो थीम के ऊपर। तो कुछ ना कुछ विचार वो बताएंगे जो हमें पहले समझना होता है। हम इसीलिए यहाँ पे गाइडेड करते हैं कि हमें अकेले रीड करते तो वो सब चीजें कभी कभी नहीं समझ में आती, बहुत डीप होती है, एक एक सेंटेंस में डीपर वो मीनिंग होता है। तो जैसे हम करते जाएंगे, जैसे जैसे समझ में आता जाएगा तो हम अपना जो मिरर वर्क एक्सरसाइज है मोर इफेक्टिवली कर पाएंगे, जितना हम लॉजिकल माइंड से समझ के करते जाएंगे। So that's it. You have to start from your morning tomorrow, and let's see what we will do today. I urge you to keep a journal as you do your mirror work. Jot down your thoughts and feelings so you can see how you are progressing. Each day, I will give you a journaling exercise suggesting a few questions to help you get started. I believe that each of us has a power within us, a higher self connected to the universal power that loves and sustains us and bring us prosperity of every kind. Journaling will help you connect with this force. You will see that you have within you all that you need to grow and change. तो ये जर्नलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर मैंने अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव लाया है ना, तो इसमें जर्नलिंग का बहुत ही बड़ा हाथ है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये प्लीज ये नोट करें। जर्नलिंग विल हेल्प यू कनेक्ट विद दिस फोर्स, जो हम सुप्रीम फोर्स बोलते हैं, जो हायर सेल्फ होता है हमारा, जो यूनिवर्सल पावर के साथ कनेक्टेड है, उसके साथ कनेक्ट होने में जर्नलिंग आपको बहुत ही मदद करता है। क्योंकि जब आप लिखते हो ना, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। तो जो भी आपको अपने आप के अंदर जो चेंजेस लाने हैं, अपने आप को जो ग्रो करना है, वो जर्नलिंग इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। खाली खाली मिरर वर्क करने से नहीं होगा, आपके जो डीपर थॉट्स है वो जर्नलिंग में बाहर आएंगे। तो आपको ये दो चीजें, मिरर वर्क एंड जर्नलिंग, बोथ ऑफ देम गो हैंड इन हैंड, तो दोनों ही करनी है आपको। लेट्स सी। Each day, I will also provide you with a heart thought to support your mirror work and an affirmation to help you put the day's theme into an action. Finally, I offer a guided meditation. I suggest that you sit quietly before you go to bed and reflect on how these ideas can make your life a little easier and a lot better. You can read the meditation in the book, or if you prefer, listen to the audio version from which it was adapted. Okay, so I will be sharing all the meditation जो अब तक मैंने बनाए हैं, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे है।
तो आई विल शेयर द लिंक एवरी सिंगल डे. आपको बस वो मेडिटेशन करना है. और यानी मेडिटेशन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है. आपने देखा था ना कि मेडिटेशन कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है. तो रोज आपको सोने से पहले वो मेडिटेशन करके ही सोना है. ठीक है. तो ये सब चीजें आपको पता चल गई कि एग्जैक्टली करना क्या है. अनदर चीज मैं बोलूंगी, इस बार हमने लास्ट टाइम नहीं किया था. आई डिडंट टेल यू टू डू दैट टाइम, बट दिस टाइम आई विल सजेस्ट यू कि जो हार्ट थॉट हम पढ़ते हैं ना रोज, वो एटलीस्ट 7 टाइम्स आपको लिखना है. कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट ही लगेंगे. पर वो जो हार्ट थॉट आप 7 टाइम लिखोगे अपने जर्नल में, वो आपके अंदर आत्मसात होने में बहुत फटाफट हो जाएगा. वैसे हम अभी इसे दिल पे तो हाथ रख के बोलते ही है, कर खाली बोलने से अच्छा है कि आप लिख भी दो उसको 7 टाइम्स. ओके, सो दिस इज क्लियर. यू हैव टू डू द मिरर वर्क, you have to do the journaling, whatever Louis says. You have to do the meditation and heart thought 7 times, write it down. इनफैक्ट मैं इस बार थोड़े और चेंजेस भी लाना चाहती हूँ कि कोई कोई जो एफर्मेशंस है जो हम मिरर के सामने बोलते हैं, वो भी आप 7-7 बार लिख देना. इतना ज्यादा, बिलीव मी, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता. मैंने लिखा हुआ है ये सब, इसलिए मैं बोल रही हूँ. तो आप भी कर सकते हो. दैट्स नॉट टू मच. क्योंकि 7 बार लिखने से, यानी मान लो आपने मॉर्निंग में सुबह सुबह मिरर वर्क स्टार्ट किया. ओके, तो मिरर वर्क जैसे ही स्टार्ट किया, आपने पूरे एफर्मेशंस देख लिए कि आपको आज के बोलने क्या है. वही एफर्मेशंस उसी टाइम पे सुबह आप जर्नलिंग तो वैसे भी करते हो, ग्रेटिट्यूड वगैरह. उसके बाद तुरंत ही देख लो कौन से एफर्मेशंस आज के दिन में आपको बोलने हैं. वो तुरंत ही लिख दो 7 टाइम्स. तो याद भी रह जाएगा और पूरे दिन मिरर वर्क करने में आपको हेल्प भी होगी. सो दैट्स फॉर द होल मिरर वर्क 21 days. Okay, let's read. Your day 1 mirror work exercise. Stand or sit in front of your bathroom mirror. Look into your eyes. Take a deep breath and say these affirmations. I want to like you. I want to really learn to love you. Let's go for it and really have some fun. Take another deep breath and say, I am learning to really like you. I am learning to really love you. This is the first exercise, and I know it can be a little challenging. Stay with it. Keep taking deep breaths. Look into your eyes. Use your own name as you say. I am willing to learn to love you. Name. I am willing to learn to love you. Throughout the day, each time you pass a mirror or see your reflection, please repeat this affirmation even if you have to do it silently. तो साइलेंटली भी बोलो, मिरर के सामने लाउड भी बोलो कि आई एम विलिंग टू लर्न टू लव यू. आई एम विलिंग टू लर्न टू लव यू, यानी मैं तुझसे प्यार करना सीखना चाहती हूँ. अगर हिंदी में बोलेंगे तो या तो ये भी बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू लाइक यू. आई वॉन्ट टू रियली लर्न टू लव यू. मुझे सीखना है कि कैसे मैं तुझसे प्यार कर सकती हूँ. लेट्स गो फॉर इट. तो एंड रियली हैव सम फन. तो ये सब आपको मिरर के सामने बोलना है. जब भी आप पास होते हो मिरर के सामने या कहीं पे भी अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, तो आपको ये बोलना है. Okay, let's read. At first, when you do your mirror work, you may feel silly or stupid repeating the affirmations. You may even be angry or want to cry. That's all right. In fact, it's quite normal. And you are not alone. Remember that I am right here with you. I have been through this too. And tomorrow is a new day. Yes, so लुइस ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो हमें आगे बढ़ना है धीरे धीरे. अगर इवन क्राई होने का मन कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, जो भी, बस आपको ये करते जाना है. ये प्रोसेस में रहना है और इसको प्रोसेस को फॉलो करना है. दैट्स इट. द पावर इज विद इन यू. योर day 1 journaling exercise. Let's read.
Arva, you are on mute. क्या हुआ? तो जो लोग हैं जिन्होंने पहले ये मिरर वर्क ऐसे ही बस सुना था, प्रैक्टिस नहीं की थी, प्लीज इस बार प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट करके देखो क्या जा रहा है आपका। ये सब चीजें करोगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। ये सभी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए होती है। ऐसे ही यहाँ पे आके जितना भी ज्ञान ले लोगे कुछ नहीं होगा उससे। प्रैक्टिस में लाना जरूरी होता है, इम्प्लीमेंटेशन। तो I think Arwa has to leave or something. I don't know. Okay, Babita ji, if you want to read, you can start. Okay, let me. Okay. I cannot see the screen. सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? Now I can see. Now I can see. The power is within you. She's come back. Your Sorry, day. I had a call actually. Oh. It's okay, Babita ji, you can carry on. No, you finish it. I'll do it next time. Finish it. Okay. I'll start. Okay. The power is within you. Your day one journaling exercise. After you finish your morning mirror work, write down your feelings and observations. Did you feel angry or upset or silly? 6 hours after finishing your morning mirror work, again write down your feelings and observation. As you continue to practice your mirror work, formally and informally, did you start to believe what you were saying to yourself? Keep track of any changes in your behavior or your beliefs over the course of the day. Did the exercise get easier or did you continue to find it difficult after doing it a while? At the end of the day, before you go to bed, write down what you learned from doing your mirror work. हाँ, तो बिफोर इवन यू गो टू बेड आपको ये लिखना है कि क्या आपने सीखा। तो ये देखो, ये लिखना बहुत ही जरूरी है। आपको अपने अंदर के थॉट्स, अपने इनर थॉट्स, जो डीपर थॉट्स से पता चलेंगे। और कभी कभी कुछ नहीं भी आता है तो बस ऐसे ही जो भी फील करते हो लिख दो। जरूरी नहीं है कि मिरर वर्क में आपने कुछ किया और मिरर वर्क से ही रिलेटेड कुछ लिखना है। ऐसे ही आपको जो भी उस टाइम पे फील हो रहा है आप ऐसे ही लिख सकते हो। आपको यहाँ पे किसी को हमें कुछ प्रूव नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। ये सब चीजें हम कर रहे हैं अपने खुद के लिए करते हैं, तो हमें ही वो वापस जाके भी वह हमें ही देखना होगा। तो आप लिख दो जो भी, कुछ भी ऐसे ही, कुछ भी सिली सा भी लग रहा है तो भी लिख दो। और ये 2-3 बार करना आपके लिए कल का दिन होगा। तो कल के दिन में 2-3 बार करना, और इवन बिफोर यू गो टू बेड। ओके, लेट्स रीड। Your heart thought for day one. I am open and receptive. If we do mirror work to create good in our life, but there's a part of us that doesn't believe we are worth it. We are not going to believe the words we are saying as we look in the mirror. We will reach a point at which we start thinking mirror work doesn't work. The truth is, the perception that mirror work doesn't work has nothing to do with the mirror work itself or the affirmation we say. The problem is that we don't believe we deserve all the good that life has to offer. If that's your belief, then affirm. I am open and receptive. हाँ, तो ये हार्ट थॉट आपको पहले से ही लिख देना है। आई एम ओपन रिसेप्टिव 7 टाइम्स। क्योंकि कई लोगों से मेरी अभी बात होती, तो इसमें से 1-2 लोग ऐसे थे जिनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला नहीं मेरे लिए तो मेरा वह काम नहीं कर रहा है। मैंने बोला ये आपके लिए ही नहीं काम कर रहा है, वो मिरर वर्क के रिलेटेड कुछ है ही नहीं।
अगर ये मिलियंस ऑफ लोगों के लिए काम कर रहा है तो मिरर वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज योर इनर सेल्फ, जिसको आपने हमेशा ही डांटा है, हमेशा ही बोला है कि यू डोंट डिजर्व, यू डोंट डिजर्व, यू डोंट डिजर्व, कहीं ना कहीं पे ऐसा ही डांटा होगा, बोला होगा, इसलिए आपको लगता होगा कि मिरर वर्क काम नहीं कर रहा है. But it has nothing to do with the mirror work. It has only with your perception. कि आपका परसेप्शन ऐसा है कि यानी आप अपने पर्दे से देख रहे हो ना दुनिया को. वैसे भी हम अभी जो भी दुनिया देखते हैं वो एक्चुअली रियलिटी तो देखते ही नहीं है हम. मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने परसेप्शन से दुनिया को देखते हैं. जैसे हमने अगर रेड चश्मा लगाया तो हमें पूरी दुनिया रेड दिख रही है, ब्लैक लगाया तो ब्लैक दिख रही है. उसी तरह से हम अभी भी जो वर्ल्ड को देखते हैं ना अपने परसेप्शन के साथ देखते हैं. तो आपको मिरर वर्क में भी ऐसा ही लगेगा कि नहीं ये मिरर वर्क तो काम नहीं करता, पर ऐसा नहीं है. इट हैज वर्कड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल. तो हमारे लिए भी काम करेगा. बस हमें इसके साथ डटे रहना है कि नहीं, आई वॉन्ट टू लर्न टू लव यू. तो ये हमें अपने आप से मिरर के सामने बोलते ही रहना है. तो mirror will allow you to love. Okay, let's read. Your day one meditation, loving yourself. Each one of us has the ability to love ourselves more. Each one of us deserves to be loved. We deserve to live well, to be healthy, to be loved and loving, and to prosper. And that little child within each of us deserves to grow up into a wonderful adult. So see yourself surrounded by love. See yourself happy and healthy and whole. And see yourself as you would like it to be, putting in all the details. Know that you deserve it. And then take the love from your heart and let it begin to flow. Feeling your body and then moving out from you. Visualize the people you love sitting on either side of you. Let the love flow to those on your left and send them comforting thoughts. Surround them with love and support and wish them well. And then let the love from your heart flow to the people on your right. Surround them with healing energies and love and peace and light. Let your love flow around the room until you are sitting in an enormous circle of love. Feel the love circulating as it goes out from you and then comes back to you multiplied. Love is the most powerful healing force there is. You can take this love out into the world and silently share it with everyone you meet. Love yourself, love one another, love the planet, and know that we all are one. And so it is. Yes, so that's the meditation for us. तो जैसे सर्कल ऑफ लव के अंदर हमें अपने आप को इमेजिन करना है. So yeah, today is our day 19, magical footsteps. तो जैसे मैजिक बुक में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जो हमारी जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है वो गहराई में जाती है, यानी डीपर जा रही है. अभी हम ऐसी ऐसी प्रैक्टिस सीख रहे हैं जो हमारे बहुत ही डीपर लेवल पे काम करती है. तो आज का दिन है 19वां दिन और अभी एक्चुअली ये जो ग्रेटिट्यूड की भी प्रैक्टिस है वो इजी होती जा रही है. जितना आप करते जा रहे हो उतनी वो इजी हो रही है आपके लिए. Arwa had to leave, so Babita ji, you can start reading the 19वां दिन जादुई कदम. हाँ, 19वां दिन जादुई कदम. हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है. और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है उसी अनुपात
में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 to 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। यानी इन आइंस्टाइन ने शब्द इतनी बड़ी बात बोली है यहाँ पे कि जो भी अगर मेरी लिए बाहरी जीवन है मेरा, जो अंदरूनी एंड बाहरी, देखो आप यहाँ पे कितना बड़ा उन्होंने ये एक रहस्य दिया हुआ है, अंदरूनी तथा बाहरी, यानी इनर एंड आउटर वर्ल्ड। अभी मोस्टली हम हमारे बाहरी वर्ल्ड को ही हम देखते रहते हैं। इनर वर्ल्ड में हम गए थे कभी पहले, ये मैजिक बुक करने से पहले, या फिर हमने ये जो मिरर वर्क स्टार्ट किया उससे पहले कोई भी जाता था अपने इनर वर्ल्ड में? हम हमेशा कुछ ना कुछ बाहरी वर्ल्ड में ही ढूंढते रहते थे कि ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, मेरे नसीब ऐसे है, या जो भी हम सोचते होंगे। तो अभी जैसे जैसे हम इनर वर्ल्ड में जाते हैं तो अभी हमें कुछ कुछ एहसास हो रहा है कि हाँ, बहुत कुछ इनर वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड में डिपेंड करता है, राइट? तो ये आपको समझना है कि हमारा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, वो सभी लोगों पे ही डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं पे निर्भर है। यथा अब अगर ये लुइस ने ये बुक लिखी है तो हम ये अपने इनर वर्ल्ड को यहाँ पे समझ पा रहे हैं, या ये रोंडा बर्न ने ये जो बुक लिखी है तो जिससे हम अपने इनर वर्ल्ड में जा सके। यानी कितनी सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ हमें दे के गए हैं, पहले भी और अभी भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा अंदरूनी यानी इनर एंड आउटर वर्ल्ड डिपेंड करता है जिनके ऊपर। अभी ये सब चीजें भी हम हमारे इनर वर्ल्ड में भी क्यों जा पा रहे हैं? क्योंकि हम आउटर वर्ल्ड में ये सब चीजें पहले समझ रहे हैं कि अच्छा हाँ ऐसा है, हमें पता ही नहीं था अब तक। अभी हम धीरे 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 बाहरी वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड के थ्रू जा रहे हैं, इनर वर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं। तो ये सब चीजें किसी न किसी लोग पे निर्भर करती है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन दिन में कितनी बार थैंक्स देते थे, और यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला कि उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो हम लोगों को भी ये मेहनत करनी है, और जो भी हमें जैसे रोंडा बर्न ने आइंस्टाइन से इंस्पायर होके ये वाली पूरी जो ये प्रैक्टिस है आज की 19वें दिन की ये बनाई है, और मैं बोलूंगी कि आप ये प्रैक्टिस रोज करें, बहुत ही फायदा होगा आपको। मैं रोज करती हूँ, एक दिन भी मेरा इसके बिना नहीं जाता। ये करती हूँ और मैं रोज ट्री को हक करती हूँ। तो ये आप सबको करना है। पहले इनिशियली जब मैंने ट्री को हक करना स्टार्ट किया था तो मुझे इतनी कोई फीलिंग्स नहीं आ रही थी, तो भी मैं करती गई, आज मुझे इतना टाइम हो गया। अब मैं एक अलग ही प्रकार का जॉय महसूस करती हूँ जब मैं ट्री को हक करती हूँ, और अब मैं वहां पे थोड़ी देर ठहरना चाहती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। पहले मैं फटाफट करती थी, मैं चली जाती थी, कहीं ना कहीं पे मुझे रश होता था। अब मैं करती हूँ आराम से, मैं वहां पे ठहर जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद करके मैं फील करना चाहती हूँ वो जो ट्री की ओर से जो प्यार मिलता है वो मैं फील करना चाहती हूँ। तो अब तक परसेप्शन था, पर्दे लगे होते हैं, माइंड का बहुत बड़ा जाल बिछा होता है, तो हम वो फील नहीं कर पाते। पर हम डटे रहते हैं, प्रोसेस में रहते हैं, तो हम ये फील भी करने लगते हैं। या सो लेट्स रीड। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है, उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा नहीं, आज आइंस्टाइन की ही तरह। I lost the screen. Wait, Alifia. हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। Yes. आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है,
और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप भी 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकेंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए अवार्ड 1921 to 1994 लेखक। तो हमें जादुई कदम ये हम पूरे दिन में 86,400 सेकंड होते हैं हमारे पास। वो पता नहीं इसमें हम कितने सारे विचार करते हैं। हमारे थॉट्स कंटिन्यूअसली चलते हैं हमारे माइंड के अंदर। तो यहाँ पे कितने अच्छे से इन्होंने पूछा क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया। यानी अब पहले तो हम नहीं करते थे, पर हम अब करते हैं, तो हम ये प्राउडली बोल सकते कि हाँ हम धन्यवाद कहते हैं। ओके, लेट्स सी। जादुई कदम उठाने के लिए आप 1 कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे यह आपके पैर घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें। हाँ, आज सबको ये करना है। जहाँ अभी देखो धीरे धीरे आप सबको भी ये हैबिट बना लेनी है। जैसे मैंने अपनी हैबिट बना ली कि चलना ही, जब भी चलते ही हो अंदर से थैंक यू निकलना चाहिए। ये हमारे बीइंग में आ जाना चाहिए। अभी हम डूइंग कर रहे थे अब तक, धीरे धीरे हमें बीइंग में ही लाना है कि हमारा बीइंग ही अंदर से हो जाए कि हम थैंकफुल है। तो हम एक एक कदम उठाते हैं। हम पूरे दिन में हम कितना चलते होंगे, राइट? कुछ ना कुछ चलते रहते, घर में इतना चलते हैं, अगर बाहर गए तो बाहर चलते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी जॉब पे जाऊंगी तो वहां पे मैं पूरा दिन चलती रहती हूँ। तो आप जितने भी कदम उठाते हो उस पे थैंक यू वाले ही कदम उठाओ, क्योंकि वैसे भी सोचना तो है ही, कुछ ना कुछ सोचते तो रहते ही है। या तो हमेशा सोचते रहते कि अभी हाँ मुझे ये काम करने हैं, ये काम करने हैं, या फिर कुछ ना कुछ पहले की मेमोरी आती तो वो सोचते रहते हैं। यानी वही पूरे दिन में यही दो चलता है, या तो मेमोरी वाला कुछ, अभी मैं मान लो अभी मैंने कुछ ऐसे ही सोचा कि हाँ इसको ये ऐसे करना है, उसके रिलेटेड 50,000 मेमोरी भी सामने आ जाएगी। तो मेरा माइंड देखना कैसा ड्रिफ्ट करेगा। एक थॉट आया नहीं कि उसमें से 50 पुराने वाले मेरे मेमोरी में से भी कुछ ना कुछ लेके आएगा। कभी कभी माइंड को ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे बहुत अचंबा लगता है, मतलब सरप्राइजिंग लगता है कि देखो मैं अभी कहाँ सोच रही थी और कहाँ लेके गया माइंड मुझे।
तो इससे अच्छा है कि ये सब सोचे, इससे अच्छा है कि हम थैंक यू वर्ड्स बोल दे, यू नो। वैसे भी कुछ ना कुछ सोचना तो ये अच्छा है, थैंक यू सोच ले, किसी किसी को थैंक यू करते जाए। कितने लोगों ने हमारे अंदरूनी और बाहरी जीवन को बेहतर बनाया है। अभी आज ये जो कॉन्शियसनेस में जो इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि कई लोगों ने ये हमारे लिए किया हुआ है ये चीजें। अभी आप देखोगे कि कितनी सारी बुक्स भी, जैसे मैं अभी उस दिन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बात करती हूँ, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात करती हूँ, ये पावर ऑफ नाउ जो एकार्ट टोल ने लिखी है, जबरदस्त बुक है वो भी, ये रोंडा बर्न ने जितनी बुक्स लिखी है, लुइस है की जितनी भी बुक्स है, अगर आप ये देखने जाओगे इतनी सारी है। मैं तो ये खाली आई एम जस्ट नेमिंग अ फ्यू। तो ये जितने भी लोग हैं जो बुक्स लिख के गए हमारे लिए, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि हम कितने, मैं सीरियसली अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ जब भी मैं ये सब सोचती हूँ। तो यानी इन सबको थैंक्स बोलना एक एक कदम के साथ कितना ही मायने रखता है। सो या लेट्स रीड फर्दर। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हैं, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। हाँ, यानी ये जादुई कदम उठाते हैं जब तो हम कितना ज्यादा हम अच्छा फील करते हैं। ये तो सबको पता होगा कि आप कभी कभी, अगर मैंने तो अपना ये भी स्ट्रक्चर बना लिया है कि अगर कुछ मुझे लो फील होता है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से, तुरंत ही बाहर निकलो और ये जादुई कदम लेना स्टार्ट कर दो। आप भी ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो। कभी भी आपको लो फील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो बाहर निकलो, जादुई कदम ले लो और आप बहुत ही बेहतर फील करोगे अपने आप के अंदर। लेट्स रीड। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। हाँ, तो हमें स्टेप्स को गिनना नहीं है, बस हमें, मैं बोलूंगी कि एटलीस्ट 5 मिनट लेके ही करना। यहाँ पे भले वो जितने भी मिनट्स बोले हैं, पर एटलीस्ट 100 तो मिनिमम करने हैं, क्योंकि उसी से आपको जो फीलिंग्स का जो है वो अच्छा फील होना, वो उसी के बाद ही स्टार्ट होता है। तो इसीलिए आपको मिनिमम 100 करने हैं। तो मैं बोलूंगी कि 10 मिनट ही कर लो, वही अच्छा रहेगा, 5 मिनट या 10 मिनट। तो यहाँ पे इन्होंने 90 सेकेंड्स बोला है। ओके, लेट्स रीड। आप म्यूट पे हो शायद। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। हर दिन किया था आइंस्टाइन ने ये काम। यानी रोंदा बर्न ने पहले ही बोला कि आइंस्टाइन ने हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं लाइफ में, बहुत सारे इन्वेंशंस जो लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया वो इन्वेंशंस ने। तो उसके साथ साथ हमें ये भी नियामत जो आइंस्टाइन ने हमें दी है कि रोज 100 टाइम्स
किसी को धन्यवाद बोलना, तो हमारे लिए तो ये प्रैक्टिस रोंडा ने बहुत इजी कर दी है। हमें तो खाली स्टेप्स लेने हैं और 100 टाइम्स थैंक यू बोलना है। तो लेट्स रीड जादुई अभ्यास क्रमांक 19। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी दिन में किसी भी समय कृतज्ञता से 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। नंबर 3, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Yes. So you have Thank to you. say thank you Babita ji for reading so wonderfully. Thank you Arwa for reading so wonderfully. आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से रीड किया। ओके, सो आज मैं चाहूंगी कि हमारे पास थोड़ा टाइम है। मुझे जाना है वैसे जॉब पे, पर तो भी मेरे पास टाइम है। तो मैं चाहूंगी कि देखो, आपकी शेयरिंग से लोगों को बहुत ही फायदा होता है। और दूसरी बात क्या है कि जब आप शेयरिंग करते हो, मैंने अभी तक नोट किया है कि मैं जितनी शेयरिंग करती हूँ, मैं जितनी यूनिवर्स की तारीफ करती हूँ पब्लिकली, इतना ही आपको और फायदा होता है। आप एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी फील करते हो, और ये एक तरह का गिविंग बैक टू द सोसाइटी, और गिविंग बैक टू द वॉट एवर यू गेन, यू आर गिविंग बैक। तो ये जो गिविंग बैक जो हम वैसे भी पढ़ते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि आप जितना देते हो उतना ही आपको वापस मिलता है। ये जो कर्मा का सर्कल है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे जितना आप शेयर करोगे ना, उतना ही आपके जो जादू है वो बढ़ते जाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये प्रैक्टिस से आपको क्या क्या फायदा हुआ, भले छोटा सा ही शेयरिंग क्यों ना हो, प्लीज कीजिए कि मिरर वर्क से क्या फायदा हुआ, या मैजिक बुक करने से आपको अभी तक कोई छोटी छोटी चीजों में भी बदलाव आया हो, तो भी यहाँ पे बोले। तो मैं सभी को इनवाइट करूंगी आज। अलेक्या, मैं कुछ बोलूं? अलेक्या, हाँ अनुष्का, हाँ बोलो। हाँ, मुझे जाना है बिया को लेने, इसलिए मैं एक छोटी सी शेयरिंग 2 मिनट की कर लूंगी, मुझे जाना है अभी। हाँ एक्चुअली मुझे मिरर वर्क से ये 2 दिन से मुझे और ज्यादा रियलाइज हो रहा है। ये फर्क पड़ा कि मैं है ना पहले किसी चीजों को प्यार नहीं करती थी, मतलब जैसे बरसात होना, सन को, पता नहीं अचानक से मुझे बारिश बहुत अच्छी लगने लगी है। मतलब अभी 2 दिन से मैं मेरी बच्ची को लेने जाती हूँ, बारिश पड़ती है, मैं गीली होती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे लिए खास पड़ रही है मुझे गीला करने की, मतलब ऐसी फीलिंग पहली बार ऐसी आई। और दूसरा कि परसों मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पे गई थी सुबह मॉर्निंग में वॉक के लिए, तो तब अचानक से इतनी बारिश का मौसम था, फिर भी सन निकल के आया और ऐसे शाइनिंग कर रहा था जैसे उसके आसपास सर्कल लाल, मतलब एक रोशनी अलग ही थी। तब भी मैंने ऐसे ही बोला कि आप मेरे साथ खेल रहे हो। मुझे ऐसा, वो अलिफिया हमेशा बोलती है ना नेचर खेलता है हमारे साथ, तो वर्ड्स मुझे याद आया, तो मैंने बोला आप मेरे साथ खेल रहे हो, ऐसा किया। और मैंने आंखें बंद की और फिर खोला तो कुछ भी नहीं था, पूरा आसमान खाली, जब से कहीं सूरज था ही नहीं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मुझे नेचर प्यार करता है। फिर कुछ दिन कल परसों, जैसे परसों में चढ़ी तो बटरफ्लाई मेरे आसपास आने लगी। तो ये मेरे जीवन में पहली बार हो रहा है, और ये चीज मुझे अलिफिया ने रियलाइज कराई। ये पक्का है अलिफिया, सच में मिरर बुक से कहीं ज्यादा अलिफिया मुझसे जब शेयरिंग हुई तब मुझे अलिफिया ने बोला था कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे नेचर पसंद है। तो वो फील मैं सोचती थी अलिफिया को कैसे, पता नहीं कैसे होता है अलिफिया को, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने भी रियलाइज किया कि ये रेन हमें अचानक से अच्छी लगने लगती है, ये सूरज हमें ऐसे खेलने लगता है, बटरफ्लाईज हमारे पास में आती हैं। तो सच में नेचर से प्यार होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये मिरर बुक के होमवर्क से ही हुआ है शायद, और पता नहीं क्या अलिफिया की संग, पता दोनों से हुआ है। थैंक यू और मुझे अनुष्का अच्छी लगने लगी आजकल बहुत अलिफिया।
थैंक यू बबीता जी। थैंक यू अलेक्सिया मेरी लाइफ में आने के लिए। और मैजिक बुक ने तो मुझे बबीता जी जैसे फ्रेंड भी दे दिए यार, बहुत अच्छे फ्रेंड है उन्हें। थैंक यू बबीता जी। हाँ थैंक यू, यू आर वेलकम। ओके अलेक्सिया, मुझे ना दिया को लेने जाना है तो मुझे क्लास लीव करना पड़ेगा। थैंक यू अनुष्का फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लाइफ। थैंक यू दिल से थैंक यू अलेक्सिया, दिल से। ओके बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। यू हैव अ अलिफिया, मुझे तो अभी हर जगह ना हार्ट्स दिखने लगे, पता है जब से आपने वो हार्ट्स की अपनी स्टोरी बताई है ना, मैं बाहर देखती हूँ क्लाउड्स पे, मैं मुझे ना शेप हार्ट्स के दिखते रहते हैं हर जगह में, और या तो मैं ढूंढती रहती हूँ मुझे हार्ट्स किधर दिख रहे हैं अभी क्लाउड्स में, तो आई एम ऑलवेज सर्चिंग फॉर द हार्ट्स, और थोड़ी देर में ना मुझे दिखने लगते हैं, मुझे बड़ी मजा आ रही है आजकल हार्ट्स देखने में, सिंस यू हैव टोल्ड, सो दिस इज वन चेंज व्हिच आई एम ऑब्जर्विंग आफ्टर डूइंग विद यू। एंड सेकेंडली ये 14th चैप्टर है जिसमें ये आता है ना, यू आर वेटिंग फॉर द ग्रेट न्यूज, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टुडे। सो आई वाज ऑन माय 14th चैप्टर 2 days बैक, एंड पूरा दिन तो निकल गया, फिर रात में मेरी मदर इन लॉ का फोन आया, तो वो जो बातें उन्होंने मुझसे शेयर की ना, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट शी इज गोइंग टू शेयर सच थिंग्स फ्रॉम मी, यू नो, इट वाज very deep. I never thought that she is going to share with me. Whatever she shares with her daughter, no, she's shared those things with me. So I really felt so great, so grateful. I mean, पूरा दिन हो गया था, so मैं सोची थी अभी great news क्या आने वाली है. So I was waiting for the great news. And did I share for the my visit to the mall? No. Did I share that? Okay, so No. I visited last week. And I visited one parlor and I was expecting some, you know, treatment for my hair. And I had some amount in my mind. And that fellow, I don't know, he told double the amount. But I said, no, you told me this much amount earlier, you have done in so much. So he said, okay, let me go to the manager and talk to her. And he came back, okay, it will be done in that. So I was so really surprised and shocked. Because in very good parlors, normally they don't do like this. But that day, I don't know what happened. He said, okay, we'll do it in that much amount. You have to pay just 200 more, whatever amount I had thought. So I said, just pay 200 more. I said, okay, that's not a problem. But you know, it was very close to what I had thought. Wow. So thank you for that also. Yeah, it was a magic for me that day. ऐसे कितने सारे मैजिक्स होते हैं, right? Yes, so these are the recent ones I'm talking about. Earlier also I've experienced many magic books. Yes. Yeah, thank you so much. Thank you. Yes, Sangeeta. And you're very welcoming in answering our questions. That is very great of you. You know, you're so smiling and welcoming all our questions. Yeah, you're very definitely. Very cute. Thank you, Alifia. Thank you, Babita ji, for sharing your light, sharing your beautiful magics. Okay. Yeah, Sangeeta ji, you can go. मैंने भी एब्जॉर्व किया कि ये जो प्रैक्टिस करते हैं हम ग्रेटिट्यूड की, और ये तो जैसे अभी अनुष्का जी ने बताया कि नेचर को देख के, तो पहले मैंने भी ये सब कभी नोटिस नहीं करती थी, लेकिन अब मैं महसूस करने लगी सुबह और शाम जब छत पे जाती हूँ मैं टेरेस पे, तो इतना अच्छा लगता है देख के। और सुबह भी जाती हूँ तो सूरज से भी बात करना, और शाम को सनसेट देखने में इतना मजा आता है। पक्षी उड़ रहे हैं तो वो भी देख के इतना मजा आता है, जैसे लगता है कि वो हमें कुछ कह के जा रहे हैं। हवा लगती है तो इतना अच्छा लगता है, हवा को थैंक यू बोलते हैं हम, प्यारी प्यारी हवा का धन्यवाद। तो ऐसा लगता है जैसे ही मैंने थैंक यू करा, हवा और अच्छे से आने लगी है। कई बार छत पे जाते हैं, हवा नहीं चल रही होती है, और जैसे मैंने थैंक यू बोल दिया तो इतनी अच्छी हवा चलने लग जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे अपनी बात सुन रही है। और पक्षी देखने में अच्छा लगता है, और जब जादुई कदम चलते हैं तो ऐसा लगता है पैर इतने खुश हैं चलने में। थैंक यू बोलते हैं तो मजा आता है। यूं ऐसे चलती हूँ मैं, तो मजा आता है बहुत। वाह, बहुत अच्छा लगता है।
मतलब छोटी छोटी चीजें नोटिस में आने लग गई। बच्चे भी कहते हैं मम्मी आप कितना खुश रहते हो, कितना थैंक यू करते हो। सब पूछते हैं कि हाँ कि ये क्या है। तो बहुत अच्छा लगता है। वाओ, थैंक यू फॉर योर हाँ, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है साथ साथ में। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू सो मच। तो यानी वही है, हम सबको नेचर से इतना प्यार हुआ, इतने सालों में कभी नहीं हुआ था, और अभी हमको नेचर से प्यार होने लगा, वो बहुत ही बड़ी बात है। और हम कितना हाँ एंजॉय कर रहे हैं नेचर के साथ, अभी हमें किसी हाँ, की जरूरत नहीं जरूरत नहीं है। है। ठीक कह रहे हो आप। और मिरर के आगे पहले रुकते ही नहीं थे, कभी ध्यान ही नहीं देते थे, और अब मिरर के आगे रुक के अफर्मेशन बोलना इतना अच्छा लगता है। खुद से इतना प्यार हो गया कि मजा आता है कहने में, अफर्मेशन कहने में। मिरर के आगे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। वंडरफुल वन। सेल्फ लव करके बहुत मजा आ रहा है। हाँ, यानी मैजिक बुक का थोड़ा एडवांस लेवल होता है मिरर वर्क, तो धीरे धीरे हम जब सेल्फ लव करने लगते हैं तो बातें और डीपर 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 होती जाती है, कि इतना हम खुद से, जैसे हम सभी चीजों से प्यार करते हैं, सभी लोगों से प्यार करते हैं, पर हम खुद को कभी प्यार नहीं करते। तो ये मिरर वर्क हमें सिखाता है कि खुद को कैसे प्यार करना। और ये सबको वैसे, एक्चुअली सेल्फ लव का तो मुझे लगता है कि मीनिंग भी हमें नहीं पता था कि सेल्फ लव किसको बोलते हैं। हम ईगो को सेल्फ लव समझते थे पहले, अभी हमें पता चला कि एक्चुअल में सेल्फ लव क्या है। जो इटर्नल, जो डिवाइन सेल्फ लव है, वो कुछ अलग ही है। तो यस, किसी और को शेयरिंग, किसी और को शेयर करना है? आई वुड लाइक टू शेयर हम्म। कि जो हमारी फर्स्ट जर्नी थी 1 मंथ की, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारा आए और बहुत सारे लेफ्ट हो गए। सो उसमें क्या है कि मिरर वर्क वो इतना लाइक यू नो डीपर है, लेकिन उसको इतना सीरियसली नहीं ले, बहुत डिफिकल्ट है और हमसे कैसे होगा नहीं होता, आपका या आवाज नहीं हम सुनाई दे रही, क्या बतूल। है। माइक को थोड़ा पास में लो बेटा, नहीं सुनाई दे रही। नहीं, can't hear. Now you can hear. A little bit, not much. My volume is on 100 still, like I can. No. It's actually it's a problem in my device only. ओके ओके, या No issue. Next time. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बोलो बोलो, कोई बात नहीं। So what I want to say कि मिरर वर्क की प्रैक्टिस है ना, जो कर रहे हैं, जो लिखा होता है, अगर कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं लिख रहे, कुछ नहीं सामने आ रहा, इट्स ओके, डू व्हाट एवर इट इज रिटन। उसको इतना लेके फिर उसको गिव अप मत कीजिए। जो भी मुझे सुन रहे हैं, डेफिनेटली आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर वीक 7 वीक्स यू विल फील गुड। मैंने मिरर वर्क से मेरी सेल्फ टॉक कंप्लीटली ही चेंज कर दी है, कंप्लीटली। वाओ, बहुत पूरी लाइक यू नो, अगर वो ईस्ट थी तो अब वेस्ट है, आप ऐसे कह सकती हूँ मैं। वाओ, कंप्लीटली अब मैं बहुत ही अवेयर हूँ कि मुझे नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी, कुछ भी नहीं बोलना। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक्स वो हम बहुत बोलते हैं। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। कुछ और हो का ना हो, और पूरे दिन में नेगेटिव टॉक हम बहुत ही बोलते हैं। यस, तो या यू नो, तो उसमें बहुत ही फर्क होगा। हाँ, यानी यहाँ पे बतूल ऐसा बोलना चाह रही है कि आप, अगर आपको इवन थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगे या जैसा भी लगे, प्लीज कंटिन्यू योर मिरर वर्क प्रैक्टिस। और वो ऐसा भी बोल रही है कि मान लो कभी कभी आपको मिरर के सामने कोई जवाब नहीं मिल रहे, जर्नलिंग में जवाब नहीं मिलते हैं, या मिरर के सामने कुछ नहीं निकल के आ रहा, तो भी प्रोसेस के साथ बने रहे, वो बतूल कहना चाह रही है सबको। क्योंकि उसको धीरे 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 जैसे वो करती गई, उसको इतना फायदा हुआ कि नेगेटिव सेल्फ टॉक काफी हद तक कम हो गई। ऑलमोस्ट लाइक ईस्ट एंड वेस्ट जितना उसको फर्क पड़ गया, अगर ईस्ट में थी तो वेस्ट में है, इतना उसको 365 डिग्रीज फर्क पड़ा है अपनी सेल्फ टॉक के अंदर। सो दैट्स अ वंडरफुल शेयरिंग बतूल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू अलीका बेन।
और अभी भी मेरे हेल्थ में जो डाउन है, लेकिन आई डोंट फील सो मच, इट्स ओके, इफ इट्स देयर मैं उसको माइंड नहीं करती और मैं हैप्पीली अपना वर्क कर रही हूँ। और ये मैजिक वर्क भी है जो ग्रेटिट्यूड लिखना है, ब्लेसिंग्स लिखना है, डेफिनेटली वो भी बहुत ही वर्क करता है, स्पेशली रिलेशनशिप में। मैंने उसमें ना लाइक इंस्टेंट रिजल्ट देखा है। यस, जो आपने बोला कि कहीं भी नेगेटिव कुछ थॉट्स आ रहे हो तो सडनली आप इमीडिएटली आप लिखना चालू कर दो, तो उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क है। और ये इनिशियली मेहनत लगती है कि लिखना पड़ता है, जितनी बार हो सके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं लिख दो, नेगेटिव थॉट्स किसी के लिए भी आए लिख दो। ये इनिशियली मेहनत पड़ती है, फिर तो एकदम एफर्टलेस लगता है, बहुत ही एफर्टलेस लगता है। तो बतुल की एक और ये बात उसने बहुत ही अच्छी बताई कि जितना भी आप ये ग्रेटिट्यूड करते हो इतना भी लाइफ ईज आउट होती जाती है। उसके भी भले ब्रेकडाउन चल रहा है हेल्थ में तो भी वो सब कुछ खुशी खुशी कर रही है। और यही होता है कि देखो आप, कोई ब्रेकडाउन तो लाइफ में आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा ही टाइम एकदम हैप्पी हैप्पी रहेंगे, कुछ नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है। चैलेंजेस तो आते ही हैं, सबको आएंगे। हाँ ये है कि थोड़े कम हो जाते हैं ग्रेटिट्यूड मिरर वर्क करने के बाद, चैलेंजेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड चैलेंजेस थे पहले, वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। एनीवेज, तो चैलेंजेस लाइफ में आते भी है, उसी टाइम पे भी आप खुशी खुशी रह रहे हो, खुशी खुशी आप वो टाइम को निकाल देते हो, तो उससे बहुत ही जल्द आप वो जो चैलेंज होगा उसमें से बाहर आ जाएंगे, बहुत ही जल्द। तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। हाँ हबीबा, बोलो बोलो, शेयरिंग। I want to tell you कि when you told in the group कि आप फिर से मिरर वर्क बुक चालू करने वाले हो, लास्ट टाइम मैंने किया था लेकिन आई गॉट स्टक एट द डे 11 ओनली, और मेरा बहुत गैप्स होते रहा और फिर आई couldn't come back, you know, I tried and I couldn't. Then I had one thing in mind that whenever you will finish this 21 days, no, I'll tell you again, and you know this time I will tell you कि आप इंग्लिश में करो ये। And today I just joined, I was at home, आज मेरी छुट्टी थी, I joined and you know you started in English. I was so happy, oh my god, that I wanted this and it happened. So I'm really thankful to you, and I will request all of you to just, you know, send me healing energy. I need some, and I want to finish this course, like, you know, this 21 days religiously. Yes, definitely Habiba, all our blessings So are... just send me that healing energy, क्योंकि कहीं ना कहीं I think there are some blocks coming on my way and I am finding it difficult to overcome it. Or you know there are many things going on, so I just want to overcome all of that and be in a peace of mind. जैसे वो state पे जाना है, like I बहुत सारा ups and downs are going on. So Habiba, yesterday I did the same thing, so this is my sharing for you, with everyone, but especially for you, but because you are like, you were there, no, that you stuck on 11th day and afterwards you didn't able to continue. So during this 21 day journey, 19 and 20 बटुल सुनाई नहीं देता, can't hear, बिल्कुल सुनाई नहीं देता। now you can hear me? मेरा 100 पे वॉल्यूम है तो मुझे थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है, मुझे लगता है सबको नहीं सुनाई दे रहा होगा। अभी थोड़ा बेटर है आई थिंक। एक्चुअली है ना 19 और 20 डे का मेरा एक्टिविटी रह गया था, तो yesterday I was at home only, so nobody was there, actually I'm not well, so I didn't went anywhere. तो मैंने 19 और 20 कोई भी नहीं था, बिल्कुल शांत था, तो आई डिड बोथ द डे एक्टिविटी मिरर के सामने बैठ के। एटलीस्ट मैंने वो अटेम्प्ट किया, उसको मैंने सीखा कि क्या है। तो वो क्या है कि एक चैप्टर ना करने से अच्छा है वो हो जाए, एक बार अपन प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली। तो आप फ्राइडे सैटरडे आपको ऑफ हो तो कुछ ऐसी मिस हो गई हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, सो एटलीस्ट आपको कंटिन्यूटी रहे, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। हाँ नहीं, पर अभीबा का मुझे लग रहा है कि क्या हुआ कि बीच में मिरर के सामने बैठना, जर्नलिंग करना, वो सब इतना डिफिकल्ट हो गया और उस पे से कुछ सिचुएशंस भी ऐसी आ गई। तो
आई हैवंट टॉक टू हर, बट मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा कि फिर वो जो माइंड ब्लॉक्स आए या फिर जो अंदर अंदर से जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आए कहीं ना कहीं पे, उसकी वजह से ये छूट गया। बट कोई बात नहीं है, देखो ये प्रोसेस है, तो बस ये प्रोसेस में बने रहना है। इस बार आप कंटिन्यू करोगे, हमारे सबकी ब्लेसिंग्स है आपके साथ। तो प्लीज एवरीबडी, लेट्स ऑल सेंड हीलिंग एनर्जी टू अवर क्यूट वन हबीबा। जितना हो सके उसको ब्लेसिंग्स भेजते हैं आज। Thank you so More much. and more power to Habiba. Lots of love. And Thank rise and you. shine always. Thank you very much. I really want to do this and be on this journey. So, I just want You will those be. energies. You will be. Habiba, This time it will be opposite. You write your intention, okay? What you want to accomplish from this journey. Write your intention today. Everyone, actually. Okay. I would tell to everybody that please write your intention. Whenever you start something, always write your intention. यानी अपना संकल्प लिख दो, अपने इरादे लिख दो कि क्यों आप कर रहे हो। जैसे हमने ये जितनी भी बुक्स देखी तो देखी ना कि कैसे वो अपना इंटेंशन लिखते हैं। रोंडा बर्न हमेशा लिखते हैं कि माई इंटेंशन फॉर दिस बिग जॉय टू द बिलियंस ऑफ पीपल। तो आप भी अपना इंटेंशन लिख दो, क्या चाहिए आपको? पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सेल्फ लव चाहिए, क्या चाहिए मिरर वर्क करने के बाद? तो ये सबको लिखना है, ठीक है? सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन नाउ। तो आई एम प्रिटी श्योर जो जिन लोगों का मिरर वर्क रह गया वो अभी स्टार्ट कर सकते हो, और अभी इस बार कंप्लीट होगा। हकीम, आपका भी 11 डे से ही छूट गया था ना? जी हाँ, 11 डेज से बाकी था। इसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप रिपीट कीजिए ये। तो अच्छा है आप रिपीट कर रहे हो तो बेनिफिट होगा। yes, और क्या 1-2 दिन मिस हो गया ना तो फिर वो ब्लॉक्स जैसे हो गए माइंड में कि आप चालू करेंगे, थोड़ा लेजीनेस उसमें हो गया। फिर भी मैं ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग वो सब तो मैं लिखता हूँ डेली। और जो मैजिक प्रैक्टिसेस है उसमें से जैसे मैजिक स्टेप्स है, मैजिक इंग्रेडिएंट्स है, वो सब मैं डेली करता हूँ। अच्छा लगता है। मैं तो पूरी जर्नी अलिफिया के साथ एक ही दिन मिस हुआ, मैं सो गई थी। टेबलेट लिया था इसलिए मैं सो गई। नहीं तो कितना भी तकलीफ मेरे को आती है तो भी मैं सेशन ऐसे नहीं करती तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं हर रोज करती हूँ कि मेरे घर में काम चलता हो, मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, तो बीमार हूँ तो भी मैं करती हूँ सेशन। जब से स्टार्ट किया तब से एक ही दिन का मेरा मिस हुआ। 4 महीने से मम्मी मेरे साथ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि ये मिरर प्रैक्टिस है, जैसे मिरर में देखना, जैसे लेडीज लोग और गर्ल्स को ज्यादातर अच्छा लगता है, जेंट्स ऐसा करते नहीं है। मैंने अभी स्टार्ट किया जब, तो मेरे को ऐसा लगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा अलग टाइप का लगा, ये क्या कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे एक एक दिन पास हुआ तो फिर थोड़ा बेटर लगने लगा, और फिर उसके साथ जैसे हो ही गया एडजस्टेबल, और अच्छा लगने लगा फिर तो वो सब मैंने फील किया मेरा वर्क में। जितना दिन मैंने किया 10-11 दिन, फिर अच्छा लगने लगा। फिर कोई कारण सर मेरा छूट गया, फिर हुआ नहीं वापस, वो 10 दिन मेरा कंटिन्यू नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ। पर अच्छा है मिरर प्रैक्टिस, अच्छा लगा। यस, और ये भी हमारे माइंड के ब्लॉक है कि लेडीज ही मिरर में देखती है, जेंट्स नहीं देख सकते। इतने सारे ब्लॉक्स हमें बचपन से मिले हैं कि लेडीज ही रो सकती है, जेंट्स को तो नहीं रोना, तो यानी बहुत ही नो है जेंट्स के लिए। ये ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा ऐसा तो मतलब जेंट्स को क्यों इमोशन नहीं होने चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो ये सभी ब्लॉक्स हैं, कहीं ना कहीं पे हमें इमोशनली सप्रेस किया जाता है। सोसाइटी हमें कर देती है, कभी कभी पेरेंट्स कर देते हैं। कोई बात नहीं, धीरे प्रोसेस में रहना है बस। तो यानी ये सब ब्लॉक धीरे हट जाएंगे अपने आप ही, जब ये प्रोसेस में आते हो और करते हो सब चीजें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर मेडिटेशन। At QVC, we've got everything you need for the
Lafi, I have to leave. Thank you very much. Okay, no problem. Thank you, Hakim. Thank you for every day joining and doing all this thing. आपको तो कुछ फर्क तो पड़ा ना लाइफ में ये करने से? बहुत फर्क पड़ा, चेंजेस बहुत सारे हुए, और जैसे मैजिक भी बहुत होता है, छोटे बड़े कुछ ना कुछ होता रहता है, और शेयरिंग भी मैं करता हूँ, बीच में मैंने आपको बताया था। थोड़ा डेली लाइफ में भी सब चेंजेस हुआ है, थोड़ा मेंटली भी थोड़ा अच्छा लगने लगा है, और अच्छा है सभी तरह से। जैसे जैसे आगे करते हैं और जैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट अपना बढ़ता है, उसी तरह बेनिफिट भी मिलते हैं। तो अच्छा है। ओके, थैंक यू। बस ये प्रोसेस के साथ लेना है, बहुत बड़े बड़े मैजिक्स आएंगे। ओके, थैंक यू हकीम, थैंक यू सो मच। ओके, so let's start our meditation. Everybody sit straight, back straight, feet firmly placed on the ground, eyes closed. Let's start relaxing our body. Let's take a deep breath in. And release. One more time. Let's take a deep breath in. And release. One more time. Let's take a deep breath in. And release. Now just observe your breathing and feel the rise and down of your chest, rising and falling of your chest with your breathing. Actually, I will just shut off the music for a little while. अभी आप अपने आसपास के साइलेंस को ट्राई करो सुनने का। साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं उसको। सो लेट्स स्टार्ट। एक ठहराव लाओ अपने अंदर, अपने विचारों के अंदर, तो आप ये सुन पाओगे, ये साउंड ऑफ साइलेंस।
डोंट ट्राई टू रेजिस्ट और कंट्रोल योर थॉट्स. अगर थॉट्स आ रहे हैं तो उसको क्लाउड की तरह आने दो, जाने दो. एंड देन फोकस के आपको कोई भी साउंड सुनाई दे रहा है, आसपास के जितने भी नॉइस है, कोई बात नहीं, जो भी नॉइसेस हो रहे हैं उसको होने दो. Amidst of all those noises, try to listen to this sound of silence. Ask yourself, I wonder what my next thought would be. मेरा अगला विचार क्या होगा? मैं देखती हूँ. कुछ सेकंड्स के लिए आपको कोई थॉट ही नहीं आया होगा. जैसे ही आपने अपने आप को पूछा कि लेट मी वंडर व्हाट माय नेक्स्ट थॉट वुड बी, उसको ही कहते हैं स्टिलनेस, एक ठहराव. अपने ट्रू सेल्फ को महसूस करने के लिए, भले वो फ्यू सेकंड्स ही था, वहां पे आप प्रेजेंट थे. आपका कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है उस टाइम पे.
अभी भी बहुत सारे थॉट्स चलते होंगे आपके माइंड में. We are not controlling or resisting those thoughts. Let them just come and go. वापस साउंड ऑफ साइलेंस पे ध्यान देने लगे. अगर ध्यान नहीं टिक रहा है उसके ऊपर, तो आप अपनी बॉडी में देख सकते हो कि क्या हलचल हो रही है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है. यू कैन ऑब्जर्व दैट. जैसे अगर आपके हाथ आपके लेग के ऊपर है, तो उसका टच कैसे फील हो रहा है. क्या क्या सेंसेशन है बॉडी के अंदर, वो भी आप फील कर सकते हो. ऑब्जर्व योर माइंड ऑल्सो कि कहाँ कहाँ भागता रहता है. जस्ट ऑब्जर्व. वो थॉट के साथ आइडेंटिफाई नहीं होना है हमें, उसके साथ पहचान नहीं बनानी है. हमें बस उसको खाली ऑब्जर्व करना है. Okay, let's rub our palms together and bless whole body one by one, starting from the crown chakra. Eyes, eyebrows, forehead, cheeks and chin, ears, nose, neck and throat, hands, back, hips, heart, lungs. then दिल को भी ऑब्जर्व करो. whole digestive system, thighs, knees, calves, feet. Thanks to the trillions of cells in our body, thanks to this beautiful body to keep us alive, give us so much energy, enthusiasm in the world. Thanks to the Dharti
मदर अर्थ, हमारी धरती माता को बहुत सारा धन्यवाद हमें ये जीवन दान देने के लिए। लाइफ को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ये सभी अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस देने के लिए। यूनिवर्स को बहुत सारा धन्यवाद हमारी सभी ड्रीम, सभी इच्छाएं पूरी करने के लिए और हमें अपनी लीला में शामिल करने के लिए। Cosmos, the universe, the divinity, angels and guardians, thanks to all of them. Now open your arms and say to the universe that I am open and receptive to all the goodness and abundance in the universe. Yes, I am open and receptive to all the goodness and abundance in the universe. Thank you, thank you, thank you. Okay. ये मेडिटेशन करते तो टाइम का पता ही नहीं चलता। किसी को कुछ अलग तरह का एक्सपीरियंस हुआ आज मेडिटेशन में? Did you listen? Did you hear the silent sound of silence? किसी को सुनाई दिया? All right, then I will take your leave. Thank you so much. Love, light, and abundance. Thank you, Anitya. Thank you. Thank you. Thank you. મને પેલા તને મોકલાવા નથી જતો, મોકલજે ને મને ઇન્ફોર્મેશન બ્રેન માટે ને પેલા. ક્યારના મોકલાઈ દીધા તમારે? એક દિવસે જ લખીને મોકલાઈ. નથી આવ્યા. અરે ક્યારે ક્યાંથી એવું બને? મોકલાઈ દીધા છે? નથી, મેં જોયું તારું લિંક જ હતું. ઓકે ચલો. ઓકે 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 બાય. Bye. I love you. Love you, love you.